Hello students, till previous lecture we have seen in our chapter electricity we had discussed about charge, which is the fundamental key of electricity, and electric current and electric potential, and the circuit components. So right now we are going to discuss about the very important law of electricity which is named as Ohm's law. Ohm's law. See, we have seen if we are going to apply a potential difference across the terminals of a conductor. Suppose if we are going to, this is the emitter, battery shorts and key, okay, conductor, conducting wire बोल देते हैं इसको suppose. Okay. So we have seen if we are going to apply a potential difference across the terminals of a conductor, then there will be a net current flow. And the direction of current always positive terminal to negative terminal of a source. Okay. So Ohm's law basically gives us the relationship between the potential difference which is applied across the terminals of conductor V and I. So Ohm's law gives us the relationship between current flow in a conducting wire when a potential difference V is applied across its terminals. Okay. So Ohm's law, why we are going to apply Ohm's law? Ohm's law gives us the relationship between the potential difference across terminals of a conductor and current through it. Okay. So it gives us the relationship between V and I. According to this particular law, if we are going to apply a potential difference V, then there will be a current I in that particular conductor. Okay, so on the basis of Ohm's law's experiments, he proved that if we are going to increase or decrease V, then current through that particular conductor also increases or decreases. It means V proportional to I. If we are going to increase V, then I also increase. If we are going to decrease V, then I also decreases. It means V proportional to I. Ohm's law gives us the relationship between V and I. On the basis of experimental proofs or observations, we can see V proportional to I. Okay, so on the basis of experimental observations, he has seen that V always proportional to I. So if we have to remove proportionality sign, so he used a proportionality constant. So V equals to Ri. See, V जो है बेटा वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल है I के. इट मीन्स कोई एक तो फैक्टर होगा जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा हुआ है, कोई तो कांस्टेंट होगा जो V के वैल्यूज और I के वैल्यूज के साथ साथ एक कांस्टेंट होगा जो उसके रेशियो को डिवाइड कर रहा होगा. ओके, सो V ऑलवेज इक्वल्स टू Ri. हियर R क्या है बेटा? ये रेसिस्टेंस है. क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर. रेसिस्टेंस ऑफ वायर. ओके, R जो है रेसिस्टेंस ऑफ वायर है, और R को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है किसके लिए? ओम्स लॉ के लिए. R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसके लिए? ओम्स लॉ के लिए. तो ओम का लॉ ये बोलता है बेटा कि इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस V across the terminals of a conductor, then there will be a net current through it I. If we are going to change V, then I also changes. It means V always proportional to I. Okay, so now we have to remove proportionality constants. Okay, so for that particular removation of proportionality sign, we will use a proportionality constant which is R. Okay, so V always equals to Ri. Here R क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ वायर बोल सकते हैं, और उसका ऐसा बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर ओम्स लॉ. ओके, सो Ri. अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ R की बात करता हूँ, यहाँ से बेटा R क्या आता है? V अपॉन I. R आता है V अपॉन I. अच्छा, मैं बात करूँ R तो ये होगा, तो V की यूनिट जो होती है बेटा आपकी वोल्ट होती है. क्या होती है? वोल्ट. और I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर. वोल्ट पर एम्पियर. अच्छा, वोल्ट पर एम्पियर जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट हुई, लेकिन उसको क्या किया कि ओम ने अपने नाम पे, ओम एक जर्मन फिजिसिस्ट था, उसने अपने नाम पे क्या नाम दे दिया? इसको बोला गया ओम. और वोल्ट पर एम्पियर को उसने क्या बोला? ओम बोला है. क्या बोला गया है? ओम. अच्छा, ओम को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है बेटा, वो ओम को रिप्रेजेंट करने का सिंबल जो है वो ऐसा सिंबल है. कैसा सिंबल है? ये ओम का सिंबल. तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? वोल्ट पर एम्पियर.
और ओम है और ओम को ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया है। अच्छा आर की यूनिट की बात करते हैं, अब ये तो ओम्स लॉ था। अच्छा आर होता क्या है? अच्छा अगर मैं बात करूं यहाँ से वी और आई में ग्राफ की बात करूं तो वी प्रोपोर्शनल आई है। वी और आई में बात करूं किसकी? वी प्रोपोर्शनल आई। अगर ये मेरा वी एक्सिस है, ये मेरा आई एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है, तो वी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू, अगर सपोज करके वी 0 तो आई भी 0। वी हैव सीन इन दैट पर्टिकुलर केस इफ वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई a potential difference, then there will be a flow of electrons, but which type of flow? Random flow of electrons are there. So that particular random flow, there will be a net charge flow in a particular direction is 0, so current always 0. Okay, so अगर V 0 तो करंट भी 0। अच्छा तो आपका जो ग्राफ बनाएंगे हम प्लॉट करेंगे तो V वर्सेस I वो ग्राफ कैसा बनेगा बेटे? स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन इट मींस V को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो I भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये V प्रोपोर्शनल टू I का ग्राफ, V प्रोपोर्शनल टू I का ग्राफ। बट अगर आप बात करोगे कि सर मेरे तो V और I के दो ग्राफ है, V और I के दो ग्राफ, सपोज करके ये ग्राफ 1 है और ये ग्राफ सेकंड वाला है। ओके, अब Vi का ग्राफ जो है बेटा एक्चुअल में y = mx + c। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखता हूं, जनरल एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, y = mx + या -c। ओके, सो y = mx + -c। अच्छा हियर मैं अभी को कंपेयर करता हूं तो y क्या है? v है। अच्छा m कौन है? अच्छा x एक्सिस पे कौन है मेरा? I है, तो x एक्सिस पे I है, तो m कौन है? r है, और m होता है बेटा स्लोप। m को क्या लिखते हैं? स्लोप होता है। तो और ये c तो यहाँ 0 है, c तो यहाँ 0 है अपने इक्वेशन में। इसका मतलब जो ये जो है स्लोप जो है कौन? ये जो स्लोप है ये पहले का है और ये स्लोप किसका है? दूसरे का है। तो यहां से स्लोप क्या होता है? यहां से लिख सकते हो बेटा स्लोप ऑफ vi ग्राफ। किसका? vi ग्राफ क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। इट मींस अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास vi ग्राफ है फर्स्ट और सेकंड, तो आप बोलोगे कि r1 बढ़ा के r2, मान लो कि पहला r1 को रिप्रेजेंट करा, दूसरा r2 को, तो आपको देखना है कि बेटा x एक्सिस पे i होना चाहिए, y एक्सिस पे v होना चाहिए। तो जिसका स्लोप ज्यादा है वो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इट मींस यहां से क्या हो जाएगा कि r2 बड़ा है किससे? r1 से। क्यों बड़ा है? क्योंकि r2 का स्लोप जो है x एक्सिस से, मतलब i एक्सिस से, किससे? I के साथ है, तो I एक्सिस से R का स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। अगर सपोज करके कई बार बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन क्या दे देता है? जनरल इक्वेशन ये दे देगा, बोला ये वाला जो है मेरा V एक्सिस है, ये वाला मेरा I एक्सिस है, ये वाला मेरा I एक्सिस है। अब आपसे पूछा कि ये मेरा R2 है, ये मेरा R1 है, बोलो R1 बढ़ा के R2, तो आपने देखना बेटा स्लोप देखना आपने I एक्सिस। स्लोप का मतलब बेटा एंगल देखो, क्योंकि स्लोप जो होता है जनरली, स्लोप जो होता है, स्लोप को मैं लिख सकता हूं tan थीटा। स्लोप होता है tan थीटा होता है, और मतलब tan थीटा अगर थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो tan का वैल्यू भी बढ़ता है। tan थीटा का वैल्यू बढ़ता है। 90 तक की बात करते हैं, 90 साल की बाद की बात है, वो अलग चीज है ना। तो आपका स्लोप बढ़ता है तो थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, इट मींस आपका वैल्यू बढ़ रहा है, और वैल्यू कौन है? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अच्छा अब इस बार मेरे को किससे लेना है? x एक्सिस से लेना है या y एक्सिस से? मेरे को स्लोप देखना है, y के साथ देखना है। तो स्लोप y के साथ r2 का स्लोप एंगल है वो छोटा है, जबकि r1 का एंगल बड़ा है। तो इस बार कौन बड़ा है? इस बार r1 बड़ा है किससे? r2 से। इस बार कौन बड़ा है? r1 बड़ा है r2 से। ध्यान रखने का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली कि vi ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, दैट पर्टिकुलर वायर का रेजिस्टेंस को। अच्छा वायर का रेजिस्टेंस जो है v और i पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर इज डिफाइंड एज v upon i। ओके, लेट मी डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर। ओके, सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर, suppose this is a given wire, this is a given wire, suppose cross section area A, length L, okay, and suppose करके एक स्पेसिफिक मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, मेटल का बना है या कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर। ओके, अगर मैंने इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इसमें मैंने एमीटर लगा दिया, बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, तो इसमें क्या फ्लो होगा? एक करंट फ्लो होगा आई, ठीक। अच्छा ओम बोलता है कि वीक वस्तु क्या आ रहा था बेटा? आर आई। यहां से अगर मैं आर बोलता हूं तो क्या आता है? वी अपॉन आई, और आई बोलता हूं तो क्या करता है? वी बाई आर। आई बोलता हूं तो वी बाई आर। ये तो कन्वर्जन है, इंटरचेंज है, बेसिक इंटरचेंज। अच्छा अपन बात करते हैं आर की, तो आर जो आता है वी अपॉन आई, वोल्ट पर एम्पियर को ओम बोला गया। अच्छा आर इज डिफाइंड एज वी अपॉन आई, आर इज डिफाइंड एज V upon I, but R never depends on V or I.
but R never depends on V and I. It means R resistance of a given wire is defined as the ratio of V and I, but it never depends on V और I. क्यों? क्योंकि सपोज करके अपना जो वायर है उसमें मैंने अगर वोल्टेज नहीं लगाया तो क्या इसका रेजिस्टेंस नहीं है? रेजिस्टेंस है। सपोज कर मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दूं, आपसे बोलूं कि एक पानी का बोतल है। अच्छा, पानी की बोतल में पानी कितना है, उससे उसका कैपेसिटी डिसाइड होता है कि कैपेसिटी जब वो बना तब डिसाइड हो गया। तो आपका जैसे ये मान लो सपोज करके आपका एक कंटेनर है, ठीक है, इसका कैपेसिटी जो है, इसका कैपेसिटी सपोज करके 1 लीटर है। कौन है? 1 लीटर है। अगर मान लो ये खाली है तो भी इसका कैपेसिटी कितना है? 1 लीटर। अगर ये आधा भरा है तो भी इसका कैपेसिटी कितना है? 1 लीटर। अगर ये पूरा भरा है तो भी इसका कैपेसिटी कितना है? 1 लीटर। मतलब इसका कैपेसिटी जो है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये डिसाइड हो चुका है। वैसे ही इसका जो कंडक्टिव वायर है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो जब ये बनाया गया तभी डिसाइड हो गया। आर जो है वी और आई पे डिफाइन हो सकता है। आर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वी और आई। इट मींस आर इज ऑलवेज डिफाइंड एज V upon I, but never depends on V और I. It means R डिपेंड किस पे करेगा? तो आज सर जो अब जब मेरा R मैन्युफैक्चर हुआ, कोई वायर था, कोई भी आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, तो जब वो डिजाइन किया गया, जब वो मैन्युफैक्चर किया गया, तभी उसका रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स हो गया कि V upon I. So R never depends on V और I. अच्छा, तो सर R डिपेंड किस पे करता है? ये R है क्या एक्चुअल में? तो सर R तो ऐसा, बट R को डिफाइन तो करो, R को डिफाइन तो करो। तो R जो है बेटा रेजिस्टेंस है किसी गिवन वायर का या गिवन इक्विपमेंट का, तो R जो है वो डिफाइन कैसे करें? अच्छा, R है क्या एक्चुअल में? रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का मतलब तो है कि वो रेसिस्ट करना चाहिए। तो ये R जो है मेटेलिक वायर, वो किसको रेसिस्ट कर रहा है? वो बेटा ये एक्चुअल में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसका रेसिस्ट करते हैं कौन? इसके मेटेलिक वायर के आयंस जो है उसको रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर इज डिफाइंड एज टोटल रेसिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे टोटल रेसिस्टिव फोर्स offered to flow of electrons, flow of charge भी बोल सकता हूँ, और flow of electrons by conductor. Total resistive force offered to flow of charge or electrons by conductor known as resistance of that particular conductor. Resistance of that particular conductor. Okay. अब सोचो कि R जो है V और I का रेशियो है, बट R V और I पे डिपेंड नहीं करता है, तो R किस पे डिपेंड करता है? इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। So dependency of R, dependency of R. Okay, factors on which resistance depends. अच्छा, मैंने आपसे बताया कि जब कोई भी गिवन वायर है, सपोज करके गिवन वायर है, तो जब इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो इसकी कुछ लेंथ रही होगी, कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया रहा होगा। एक है बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, अच्छा, ये किसी भी मेटल का बना हो, किसी मटेरियल का बना होगा। सपोज कर मटेरियल आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एयू हो सकता है, एजी हो सकता है, बहुत सारे हैं ना। सो कोई गिवन मटेरियल है ना, गिवन मटेरियल का आपका वायर बना है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा इसकी लेंथ पे। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? आर जो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, है ना, लेंथ पे डिपेंड किया। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां फ्लो क्या है? इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो उसको टोटल रेजिस्टिव पाथ ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। इट मींस आर प्रोपोर्शनल, इट मींस आर जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके? लेंथ के। सोचो ना बेटा कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां मूव करना है, यहां से यहां मूव करना है, आइदर डायरेक्शन, डजंट मैटर। ओके, दैट विल बी डिसाइडेड due to the polarity of battery or source which is applied on the terminals of it. Okay,
सो आर जो है वो रेजिस्टेंस है, वो किसका है कि रेजिस्टेंस क्या, टोटल रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ से मेरा यहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है मेरा यहाँ आना, अगर ये यहाँ आया तो लेंथ कम है तो इसका रेजिस्टिव पार्ट भी कम होगा, इट मींस रेजिस्टेंस भी कम होगा। अच्छा आर जो है वो डिपेंड करता है एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। अच्छा सपोज कर कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम, मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो क्या इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो पाएंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो इजीली पास हो पाएंगे। अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया सर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजी हो जाएगा। अरे सपोज करना क्रॉस सेक्शन एरिया, सपोज कर इसी रूम का गेट है वो छोटा सा ओपन किया मैंने, एक साइड से ओपन किया तो मैंने बोला कि यू हैव टू गो आउटसाइड, ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू गो आउटसाइड, सो इट विल टेक मोर टाइम इफ आई एम ओपन होल डोर ना। अगर आपका पूरा दरवाजा खुला है तो स्टूडेंट जल्दी से पास हो जाएंगे, इट मींस क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इट मींस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। इट मींस ध्यान रखना रेजिस्टेंस, वायर का लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इट मींस अ थिक वायर, इट मींस अ thick wire has less resistance as compared to thin wire. A thick wire has less resistance as compared to thin wire. Okay, so ये लेंथ पे डिपेंड किया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड किया। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ तो मुझे मिलता है कि R जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ और एरिया की। कैसे R proportional length upon area. It means if I am going to increase length, then resistance also increases. If I am going to increase cross section area, then resistance decreases. Okay, now we have to remove our proportionality constant. So for that we will use a proportionality constant of R equals to rho L by E. Rho L by E. बेटा ये rho है, क्या है? Rho, R H O, rho. Okay. So ये rho L by E. अब ये रेजिस्टेंस आया किसी गिवन वायर कि रो क्या है बेटा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव किया तो ये रो है, और ये रो किस पे डिपेंड करता है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है किसी गिवन वायर का, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बेटा मटेरियल, किस पे डिपेंड करता है कि कोई मटेरियल है, मान लो सपोज करके कोई मटेरियल प्लास्टिक है तो उसका रो बहुत ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा। सपोज करके कॉपर है तो कॉपर का रो कम होता है तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो ये मटेरियल, गिवन मटेरियल पर डिपेंड करता है। अच्छा आपको ये पता चल गया लेंथ, और ये क्या पता चल गया, एरिया। तो यहाँ से आर क्या पता चल गया, रो एल बाई ए। अच्छा रो जो है बेटा इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा ये रो जो है ये रेजिस्टिविटी है, क्या है, रो जो है ये क्या है, रेसिस्टिविटी है, मटेरियल की क्या है, रेसिस्टिविटी है। देखो आपके पास 3-4 चीज है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टर और रेजिस्टेंस। सी रेसिस्टर, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टर क्या है सर, ये तो एक डिवाइस है, रेसिस्टर क्या है, इक्विपमेंट है। रेजिस्टेंस रेजिस्टर की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टर की प्रॉपर्टी की टोटल कितना आपको जो है वो अपोजिट फोर्स दे रहा है, क्या रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है, वो क्या उसका रेजिस्टेंस। अच्छा रेजिस्टर कौन है, तो रेजिस्टर तो सर कोई भी इक्विपमेंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टर बोल सकते हैं। बट रेजिस्टेंस क्या है, उसका टोटल रेजिस्टिव फोर्स है जो उसको ओपन करता है किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अच्छा रेजिस्टिविटी क्या है, तो रेजिस्टिविटी को सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। रेजिस्टिविटी अगर R जो है, रो जो है वो अगर R इसके बराबर हो जाएगा, कब हो जाएगा, इफ L इक्वल्स टू 1 मीटर और रो इक्वल्स एरिया इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में तो ज्यादा नहीं है। अगर मैं एक कंडक्टिंग वायर लेता हूं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, जिसकी लेंथ जो है वो कितना 1 मीटर हो, तो रो जो है किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर हो जाता है। अगर रो R के बराबर हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा थोड़ा सा रो के बारे में जान लेते हैं। यहां से मुझे पता चला R इक्वल्स टू रो L बाई E। अच्छा सर आप बोलोगे सर R के दो फॉर्मूले आए, ओम्स लॉ से आया R इक्वल्स टू V अपॉन I। अच्छा इधर से कौन है, इधर से मेरे पास है R इक्वल्स टू रो L बाई E। फॉर्मूला कौन सा लगाना है बेटा, फॉर्मूले दोनों करेक्ट है, फॉर्मूले दोनों करेक्ट है। अगर आपको गिवन है V I R में से कोई दो गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर आपको उसका लेंथ, एरिया और मटेरियल के बारे में कुछ कमेंट किया गया है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। अच्छा यहाँ से मैं रो की बात करता हूँ तो यहाँ से रो क्या होगा बेटा, R इंटू ए बाई एल, R इंटू ए बाई एल, R इंटू ए बाई एल। अच्छा मैं बात करूँ कि रो का यूनिट क्या होगा, तो R का यूनिट क्या था, तो R का यूनिट था बेटा ओम, ठीक है। और ए का यूनिट क्या है, एरिया में बोले तो मीटर स्क्वायर,
और लेंथ बोले तो मीटर। अच्छा 1 मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो रो की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी बेटा, ओम मीटर आएगी। रो की यूनिट क्या आएगी, ओम मीटर। रो की यूनिट क्या, ओम मीटर। अच्छा तो डिपेंडेंसी या फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, तो फर्स्ट वन लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, length of conducting wire. It means we can say the resistance of a given wire is always proportional to length of that wire. It means if we are going to increase length, then resistance also increases. The second factor, cross section area of wire. Cross section area of wire and the resistance of a given wire is always inversely proportional to cross section area of wire. If we are going to increase cross section area, then resistance decreases. Then resistance decreases. So we can say that the thick wire has less resistance as compared to thin wire. ध्यान रखने की चीजें बेटे, है ना। थर्ड वन कौन है सर, मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। सपोज कि आपका मटेरियल जो है उसकी रेसिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा एक और फैक्टर है कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर। फोर्थ वन कौन है, टेम्परेचर। बात करते हैं फोर्थ वाला फैक्टर कौन है, टेम्परेचर। देखो थोड़ा सा इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा आपको डिटेल बता देता हूँ कि टेम्परेचर अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ। किसको बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ। किसको बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ। तो दो फैक्टर काम करते हैं। दो फैक्टर काम क्या करते हैं कि यहाँ से सपोज करो कि ये मेरा एक कंडक्टिंग वायर था, कंडक्टिंग वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे। कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा टेम्परेचर को बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अच्छा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, किसकी बात कर रहा हूँ, कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा अपोजिट होता है इसका, ठीक है। सो कंडक्टर्स में अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी। अच्छा एनर्जी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे। एक्चुअल में हो क्या रहा था, एक इलेक्ट्रॉन था एक दूसरे से आया और टकराया। अच्छा ये जो कोलिजन है, वो जो कोलिजन है वो इंस्टेंटली होने लगे, मतलब टाउ क्या हो गया, टाउ बढ़ गया, सॉरी टाउ डिक्रीज हो जाता है। टाउ बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस। द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इट मींस क्या हो गया कि टाउ जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। कौन कम हो गया, टाउ। सोचना यार, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था वो आराम से आ रहा था, यहाँ के दूसरे से टकराया, तो रेजिस्टेंस तो यही तो ऑफर हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाहता है बट दूसरे इलेक्ट्रॉन में से टकराया। अच्छा अब ये सोचो कि अगर वही इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी ज्यादा दे दी तो यहाँ जल्दी से टकराया, फिर जीरो, फिर टकराया, फिर जीरो। एक्चुअल में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और इलास्टिक कोलिजन इट मींस एनर्जी एंड मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, मोमेंटम जीरो हो जाएगा। इट मींस इसकी एनर्जी तो जो थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए तो वायर में करंट फ्लो होता है तो कुछ टाइम बाद वो गर्म हो जाता है ना। सो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो कंडक्टर्स का क्या हो जाएगा, टाउ डिक्रीज दैट मींस उसका टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। आप इसे इतना सा ध्यान रखना, किसके लिए, कंडक्टर्स। किसके लिए, फॉर कंडक्टर्स, ठीक है, फॉर कंडक्टर्स। अच्छा इसके बेसिस पे थोड़े बहुत अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन लोग। क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके पास सिर्फ दो ही फॉर्मूला है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला R = V/I या V = IR, V = IR, है ना। एक दूसरा फॉर्मूला कि द डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन फोर फैक्टर्स, फर्स्ट वन लेंथ, सेकंड वन क्रॉस सेक्शन एरिया, थर्ड वन मटेरियल एंड फोर्थ इज टेम्परेचर। फोर्थ इज temperature. If we are going to increase and decrease in length, then the resistance of that particular wire is also increases or decreases. It means the resistance of a wire is proportional to length. The second factor is cross section area. The resistance of a given wire is always inversely proportional to cross section area of that particular wire. It means if we are going to increase cross section area, then its resistance decreases. Its resistance decreases. Okay. And the third one, resistivity of given wire. It means resistivity depends on the material by which the wire is made up of, है ना, made up of that particular material. सपोज करके आपका जो वायर है वो आयरन का बना है कि वुड का बना है कि प्लास्टिक का बना है, तो जैसा ज्यादा उसका ग्रो होगा तो रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा, है ना। अच्छा थोड़ा सा बात करते हैं हम कि जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। किसके लिए, इसके लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसको क्या बोला गया, रेजिस्टिविटी बोला गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, है ना। तो वो आपको गिवन होगा, वो आपको गिवन होगा। सपोज करके जैसे एक क्वेश्चन की बात करता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दिया है बेटा आपसे, वो बोला गया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वॉट। सी थोड़ा सा बात करते हैं।
एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कुछ छोटा सा, बाकी सब इजी है, इतना ज्यादा वो टफ नहीं है। एक एग्जांपल की बात करता हूँ कि एक हीटर है, मान लो कि हीटर का वायर है, ठीक है, इसके अक्रॉस अगर मैंने जब पोटेंशियल अप्लाई किया कितना बेटा 60 वोल्ट किया, कितना किया 60 वोल्ट। अच्छा इसके अक्रॉस मैंने 60 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया तो इसमें से कुछ करंट रही होगी। आपका क्वेश्चन बोलना चाह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एंपियर। तो करंट कितना मिला, 4 एंपियर का मिला, कितना मिला 4 एंपियर का मिला। अच्छा फिर आगे बोलना चाह रहा है व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120। अगर सोचिए ऐसा था, अगर इफ V जो है वो उसको इंक्रीज कर दिया और V को कितना कर दिया 120 वोल्ट कर दूं है ना, तो ये पूछ रहा है कि I क्या होगा, या I नया I डैश क्या होगा, I डैश क्या होगा। तो देखो आपके पास दो तरीके, आपके पास दो तरीके, या तो आप क्या करो R निकाल लो, या तो आप क्या करो R निकाल लो। अच्छा ओम्स में ये बोलता है V प्रोपोर्शनल टू I, पहला तरीका तो कि मैं आपको मेथड 1 की बात करता हूं, तो V प्रोपोर्शनल टू I, इट मींस ये बोल सकता हूं कि V1 by V2 always equals to I1 by I2। अच्छा V1 कितना, V1 60 था, V2 कितना कर दिया 120 कर दिया, I1 कितना था 4, तो I2 कितना हो जाएगा I2 हो जाएगा, और I2 कितना हो जाएगा यहाँ से 2, I2 कितना हो जाएगा 8। सिंपल सोचना यार, V प्रोपोर्शनल टू I मींस V को डबल किया 60 से 120 तो I भी डबल हो जाएगा सिंपली। अच्छा दूसरा तरीका, दूसरा मेथड क्या बेटा, आपसे क्या क्या करो, पहले केस से R फाइंड कर लो, पहले केस से R फाइंड कर लो और दूसरे से निकाल लो। अच्छा मेरे पास गिवन है I और V, R नहीं है। अच्छा तो R क्या होता है V अपॉन I, V कितना बेटा 60 अपॉन I कितना है 60 अपॉन I है 4, तो R मेरे को यहाँ से कितना मिलेगा 15 ओम, R क्या मिल गया 15 ओम। नाउ अच्छा I डैश, या I डैश जो नया I जो होगा वो क्या हो जाएगा V डैश अपॉन R, क्योंकि R तो फिक्स होता है, R तो if I am going to increase V or I then R does not changes, R does not changes because R never depends on V or I। अगर मैंने V डैश को कितना कर दिया बेटा 120 कर दिया, R तो उतना ही रहेगा जो उतना था पहले 15, तो यहाँ से I कितना आ गया, I डैश कितना आ गया 8 एम्पियर, कितना आ गया 8 एम्पियर, सिंपल ओके 8 एम्पियर। अच्छा one more question is over here, resistance of metal wire, see resistance of metal wire, बोलना चाह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26। अच्छा बात करते हैं, एक एग्जांपल की बात करता हूं कि आपकी लेंथ दिया है 1 मीटर, रेजिस्टेंस दिया 26 ओम, कब दिया एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब टेम्परेचर फिक्स दिया उसने कि 20 डिग्री सेल्सियस पे ये है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज करने का जो फॉर्मूला बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर मैं आपको बता दूं कि R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। आपको टी किस में रखना है, किसी में भी रखो, क्योंकि चेंज जो है वो सेल्सियस और केल्विन में कोई चेंज। अच्छा R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा क्या है बेटा, यहाँ अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट है, R नॉट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है, R क्या हो जाएगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको T मिल जाएगा, है ना। सो ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो, बट ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको ध्यान में नहीं रखना। अच्छा आपसे बोला गया है गिवन वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर, रेजिस्टेंस 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 3 mm, इट मींस डायमीटर ऑफ वायर इज 3 mm और 0.3 mm, डायमीटर इज 0.3 mm, ओके। सो गिवन है डायमीटर, आपको गिवन है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एट टेम्परेचर, व्हाट विल द रेजिस्टिविटी, ओके, इट मींस आपसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करवा रहा है उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कब 820 डिग्री सेल्सियस। इट मींस आपको टेम्परेचर चेंज नहीं किया मतलब रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अच्छा आप बोलोगे कि सर मेरे को तो रो चाहिए, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है बेटा जो रो आर और एल और ये सब में रिलेशन देता हो, तो सर हमारे को एक फॉर्मूला पता था कि R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अच्छा यहाँ से सर मेरे पास मेरे को रो कैलकुलेट करना है, मेरे को एल दिया है, मेरे को आर दिया, बट मेरे को ए नहीं दिया। अच्छा बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये वायर है, अगर मैं इसको यहाँ से टॉप व्यू बताऊं तो ये कैसा होता है सिलेंड्रिकल होता है। अच्छा सिलेंड्रिकल होता है तो सिलेंडर ये सर्कल दिखेगा,
सिलेंड्रिकल वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या होगा, सर्कल होगा, सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा पाई का वैल्यू कितना 3.14, पाई का वैल्यू कितना या 22/7, कितना 22/7। अच्छा आर क्या है, आर तो रेडियस होती है, और सर हमें पता है रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होता है। अच्छा डायमीटर किस में है, तो मैं यहां से बात करूं तो 0.3, अच्छा ये mm में है, किसमें है, मिलीमीटर में, जो कि हमें किस में रखना होता है, ऐसा यूनिट, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, लेंथ की जो होती है मीटर होती है, तो मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0.3 into 10⁻³ मीटर। बेटा मिली का मतलब होता है 10⁻³ अच्छा ये -3 है, 0.3 है, अच्छा 0.3 और एक अगर 0.3 into 10⁻³ ये कौन हो गया, उसका रेडियस हो गया डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रेडियस क्या होता है d/2। अच्छा इसका स्क्वायर करूंगा, इसका क्या करूंगा मैं, स्क्वायर करूंगा। अच्छा यहां से r मेरे को रो चाहिए, तो यहां से रो क्या होगा बेटा, r into a/l, r into a/l। अच्छा r कितना है, आपको बोला 26 into एरिया कितना, तो वो 22/7 3.14 इनटू, अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूं यहां से डेसिमल हटा दूं तो 10⁻⁴ हो जाएगा, 10⁻⁴ का स्क्वायर करूंगा 10⁻⁻1 तो इसका स्क्वायर किया तो 9/4 into 10⁻�8। ओके सी यार बेटा यहां से मैंने डेसिमल हटाया तो एक 10 पावर नीचे जाएगा तो ऊपर आके माइनस हो जाएगा, 10⁻⁴ का स्क्वायर होता तो मल्टीप्लाई हो जाता, तो 10⁻⁴ का स्क्वायर कितना -8 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से तो जो आपको रो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा बेटा, तो आपको रो का वैल्यू आ जाएगा, किसमें आएगा, ओम मीटर में आएगा, किसमें आएगा, ओम मीटर में आंसर आ जाएगा रो का, है ना। तो आप इतना पढ़ना, ट्राई करना क्वेश्चंस करने का, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।